how are you all? This is Mr. Shivam Dhiman, your English teacher, and today's video is for class 10. Today I will explain you the chapter lesson number 4, the day tsunami struck, which is of your English literature textbooks. So first of all, I will tell you what the term tsunami means. Students, we have known about many natural disasters. Natural disasters are प्राकृतिक natural disasters क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदाएं, वो disasters जो नेचर द्वारा आपके लाइफ को अफेक्ट करते हैं. जैसे कि when the plates of Earth's crust slide or collide together, it causes some vibrations which led to cause earthquake. जब धरती के भूगर्भ की जो प्लेट्स होती हैं वो जब आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, तब अर्थक्वेक आता है उसकी वाइब्रेशन से, यानी भूकंप आता है. और जब यही भूकंप पानी या समुद्री तल के नीचे आता है, यानी कि जब हम जैसे हमारी दो क्रस्ट होती हैं, क्रस्ट की दो लेयर्स हैं, एक कॉन्टिनेंट और एक ओशियनिक. जब ओशियन के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उसमें जो वेव्स या वाइब्रेशंस कॉज होते हैं वो क्या करते हैं, जो टाइडल वेव्स है उसको अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण जो ओशियन का वाटर है वो बहुत ऊंची छलांगे ऊंचा उछलता है, जिसके कारण टेरर वेव्स कॉज होती है. सो सुनामी इज also are terror waves. Okay, so the story revolves around a girl who is narrating her life incident when tsunami struck in Sri Lanka, and it took place on 26 December 2004. Students, this was the major devastating effect or disaster which took place on 26th of December 2004, and it had a diverse and terrific effect on the Sri Lanka as well as also in India and in Maldives also, and in Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands. So that terror waves cause destruction in these places. I was in class 4 when I have got that news about this disaster which took place on 26 December 2004. There was so terrified conditions in that Tamil Nadu, Kerala, that many of the family members were lost, and even the waves had swept away, had washed away all the animals, houses and their properties. There was a loss of the people, animals and even the property of the natives of that places where that tsunami affected. The waves, the tsunami caused in the waves of that Indian Ocean. तो सुनामी कहाँ पे आई थी? इंडियन ओशियन में आई थी, और उस वेव्स से जो आपका इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन जो आपका इंडिया है उसके जो कोस्टल एरियाज है उनको ज़्यादातर इसने अफेक्ट किया था. जैसे आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन पार्ट्स को अफेक्ट करने के साथ साथ जो आइलैंड पार्ट्स हैं हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको भी अफेक्ट कर रहा था. और श्रीलंका जो कॉन्टिनेंट, श्रीलंका जो नेशन है उसको भी इसने अफेक्ट किया था. सो कमिंग टू द स्टोरी बिगिंस विद अ स्क्रीम एंड शाउट. The narrator is Jaya. The narrator's name is Jaya. She is a girl, and she heard that her mother is yelling and screaming for her and
her younger brother, whose name was Mahila. So the mother was screaming so that they could run and save themselves from the terrific waves of tsunami. Students, we write, listen please, we write the spelling TSUNAMI, but its pronunciation is tsunami, where T is silent. So I was discussing about the chapter. So the mother was screaming, whose name was Shamili de Silva. Shamili de Silva was the mother's name of that narrator. जो नरेटर की मम्मी है उनका नाम था श्यामिली दे सिल्वा, नरेटर का नाम था जया और उसके छोटे भाई का नाम महिला था। तो स्टोरी बिगिंस, जो शुरुआत है उसमें जो नरेटर की मदर है वो चिल्ला रही है कि जया दौड़ जाओ, महिला दौड़ जाओ, रन महिला रन जया। एंड दे कांट अंडरस्टैंड, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, वो क्यों चिल्ला रही हैं, वो क्यों कह रही हैं कि तुम दोनों दौड़ जाओ, अपनी जान बचाओ। एंड वो लोग कुछ इससे पहले कुछ समझ पाते और वो मतलब बाहर आते, तभी उनकी जो मदर थी वो उन दोनों को एक हाथ से मतलब उसके छोटे भाई को उठाए हुए और एक हाथ से उसको पकड़े हुए वो दौड़ जाती हैं और उनको कहती है कहाँ जाने के लिए, नियर द हॉस्पिटल बिल्डिंग। वो उनको कहाँ जाने के लिए कहती हैं, नियर द हॉस्पिटल बिल्डिंग, बिकॉज इन द कोस्टल रीजन्स पीपल हैव थैच्ड रूफ हाउसेस। जहाँ कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर जो घर होते हैं वो जब तक कच्चे ही होते हैं, पक्का घर नहीं अवेलेबल वहाँ पे होते हैं। एंड the peoples living there are most of the farmers that do paddy farming or are fishermen or fishmongers. So they are fishmongers or fishermen who catch fish to earn money and to sell them by selling them. So तो जो ऐसे एरियाज है वहाँ पर ज़्यादातर हॉस्पिटल है ज़्यादा सेफ प्लेस है, कि वो बड़ा भी होगा और एक पक्का बिल्डिंग है जो कि सबसे ज़्यादा तक सेफ है। तो वो उनकी मदर उनको कहते हैं कि तुम दोनों दौड़ करके कहाँ चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट उनके लिए है। तो इतना वो कुछ समझ पाते हैं इससे पहले कि उनकी मदर दौड़ के आती है और उन दोनों बच्चों को एक तरह से पकड़ के, जैसे कि ऐसे होल्ड करके उसके भाई का और उसका हाथ पकड़ के नरेटर का दौड़ पड़ते हैं कहाँ पर, हॉस्पिटल के लिए। और वहाँ पर वो उनको टेरेस पे यानी छत पर ले जाकर छोड़ देती, जहाँ टेरेस वो पहले से ही लोगों से भरा हुआ है। एंड देयर वॉज येलिंग एंड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। जो लोग हैं जब कोई भी आपदा आती है तो लोग पहले से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो उस परेशानी में क्या करने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। तो वो उनको टेरेस पे छोड़ के आ जाती हैं और क्या कहती हैं कि तुम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे, यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। अब जो नरेटर है वो बत्तीस लोआ इज अ मेजर सिटी इन द श्रीलंका। द स्टोरी इज इन सेटअप इन श्रीलंका एंड दे वर लिविंग इन बत्तीसलोआ फ्रॉम 8 years। जो नरेटर है वो 8 साल से बत्तीसलोआ नाम के शहर में रह रही थी, कहाँ पर, श्रीलंका में। तो वो कहती है कि तुम लोग यहीं पर ही वेट करना, तुम लोग कहीं नहीं जाना, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को लेके आती हूँ, मैं तुम्हारे दादाजी को लेके आती हूँ। और वो चली जाती हैं उनके दादाजी को लेने। एंड देन somebody has said that कि बत्तीसलोआ में मतलब जो लास्ट वेव्स थी, मतलब जो आखिरी वेव्स थी अभी देखी गई थी, वो 12 feet हाई थी। तो बेचारे बच्चे घबरा जाते हैं, सब जगह येलिंग मीन्स चीख पुकार मची हुई थी, सब परेशान थे, घबराए हुए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड देन
जो नरेटर है वो ये कहते हैं कि इससे पहले कभी भी उसने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, ना ही कभी भी उसे कोई ऐसी वेव्स भयानक प्रतीत हुई थी या समझ में आई थी। एंड देन जब भी कभी भी सुनामी, साइक्लोन या कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कट ऑफ कर दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ एंड बिकॉज अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा होगा या साइक्लोन्स में हो रहा होगा या सुनामी में हो रहा होगा और जब सुनामी वेव्स उसको हिट करेंगे तो वो क्या हो सकता है, उखड़ सकता है, जिसके बिजली का सप्लाई जो है वाटर में, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उससे क्या होगा, करंट फैल जाएगा, जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको क्या लग सकता है, झटका, वो ऐसे ही मारा जा सकता है। तो वो लोग एकदम जो नरेटर है और उसकी जो सिस्टर है, उसका जो ब्रदर है, यंगर ब्रदर, वो बहुत परेशान हो चुके होते हैं और यंगर ब्रदर रोना स्टार्ट कर देता है। तभी उन्हें क्या नजर आता है कि 50 मीटर हॉस्पिटल कैंपस से दूर, मतलब 50 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल कैंपस से उनको उनकी ममा और ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं, जहां पर उनकी ममा, उनके ग्रैंडफादर, क्योंकि ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत ही भारी भरकम और थोड़े से क्या थे, मोटे थे, हैं, तो उनको वो पुशअप कर रहे थे और वो उनको बहुत दूर से पुश करते हुए लाई थी, क्योंकि जब वो आई थी तो वो सिर्फ अपने बच्चों को लेकर वहां आ पाई थी और ग्रैंडफादर छूट गए थे। तो वो सोच रही थी कि उनको भी ले आया जाए, जब अभी तो हिट किया नहीं है। तो वो उनको जब लेके आ रही थी तो बड़ी मुश्किल से धकेलते धकेलते, खींचते खींचते, क्योंकि बूढ़ा इंसान जल्दी चल नहीं पाता, तो वो उनको किसी तरह लेके आ रही थी। और कितना मीटर दूर थी, 50 मीटर, 50 मीटर दूर थी। और वो बहुत खुश हुए कि उनकी ममा और उनके ग्रैंडफादर लौट आए हैं सेफ, क्योंकि वो बच्चे हैं, अगर उनका कोई भी फैमिली मेंबर्स, क्योंकि मदर तो जो है, मदर होता है वो एक बच्चे का बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट होता है ना। तो बच्चे अपनी ममा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं उनको कुछ ऐसा हो ना जाए या वो ऐसा ना हो कि सुनामी आ जाए वो उनको अफेक्ट करे, उनकी लाइफ को अफेक्ट करे। तो वो उनको क्या कहती थी, ड्रैग करी थी, पुश करी थी आगे की जल्दी जल्दी बढ़ें और हॉस्पिटल में सेफली पहुंच जाएं। एंड तभी वो देखते हैं कि जो सुनामी वेव्स है वो आ रही हैं और वो चिल्लाते हैं, अम्मा अम्मा गेट सून फास्ट, मीन अम्मा आप जल्दी करिए। पर उनका जो चीख पुकार थी, मतलब वो चिल्ला रहे थे, वो क्या होता है, उस लहरों की आवाज में दब जाता है। और तभी जो 16 फीट हाई वेव्स थी, 16 फीट हाई वेव्स जो थी वो अफेक्ट करती हैं किसको, 32 लोआ के एरिया को। तभी 16 फीट जो वेव्स थी वो उनको पीछे से आती हुई दिखाई देती हैं और वो बेचारे मतलब जो उनकी मदर और वो जो ग्रैंडफादर पुश किए, तो तभी उनके पीछे 16 फुट हाई वेव आती हुई दिखाई देती है। और वो जब चिल्ला रहे होते तो उनका जो आवाज है वो दब जाती है। नरेटर जब चिल्ला रही होती है अम्मा अम्मा गेट सून फास्ट, तो वो आवाज दब जाती है। और तभी 16 फीट हाई वेव्स उस एरिया को क्या करती है, अफेक्ट करती है, वहां पर हिट करती है। तभी उस समय 16 फीट हाई वेव्स वहां पर टकराती हैं और सब कुछ बहा के ले जाने लगती हैं। एंड जब सुनामी वेव्स आएंगी तो होम्स, जो पब्लिक या पीपल्स हैं वहां पे जो आसपास होंगे, या एनिमल्स होंगे और प्रॉपर्टीज होंगे, हाउसेज होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। इवन जब जापान में सुनामी आई थी तब I was watching the television. I have seen that when tsunami waves hit the Japan and the ships, the houses were washed away like toys or dirt. जो कार्स थी वहां पर या शिप्स थे वो ऐसे ही बह गए जैसे खिलौने या पत्ते बह जाते हैं जब आप पानी डालते हैं। तो 16 फीट हाई वेव्स उनका पीछा करी थी और तब तक वो उस एरिया को हिट अप कर लेती हैं। अब मम्मी उनकी कहीं नहीं दिख रही थी, ना मम्मा ना उनके ग्रैंडफादर कहीं पे भी नहीं दिख रहे थे। अब बच्चे, जो छोटा भाई था नरेटर का, वो रोने लग जाता है क्योंकि वो 6 इयर्स का था और वो
इतना मतलब परेशान होकर घबरा करके कि उसकी मम्मा कहीं चली गई, तो वो ये सोच के रोना शुरू कर देता है। बट सडनली दे सॉ दैट हर मदर, द नरेटर्स मदर एंड देयर हर ग्रैंडफादर अपीयर्स, और तभी वो देखती है कि छत पर, मतलब जहाँ टेरेस पे वो रुके हुए हैं, तभी वहां पर उनकी मम्मा और उनके ग्रैंडफादर आ जाते हैं। और यही उसकी लाइफ का एक चेरिशिंग, एक हैप्पी मोमेंट होता है, क्योंकि भले ही सुनामी वेव्स ने उस एरिया को अफेक्ट किया, हर्ट मतलब हिट किया, पर वहां पर अभी भी सब कुछ सेफ था। किस तरह से? उनकी लाइफ में सब कुछ सेफ था, क्योंकि उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, उनके ग्रैंडफादर, उसकी मदर और उसका भाई, सब सेफ थे, बच गए थे। उसकी लाइफ में कुछ भी खोया नहीं, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स उसके साथ थे। तो वो क्या करती है? गॉड को थैंक करती है। तो एंड दे वर सो एक्साइटेड एंड ग्लैड टू सी हर मदर and grandfather in front of their eyes. Next day स्टोरी में मतलब जब नेक्स्ट डे जो स्टोरी अगर हम आगे जब पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट डे नरेटर ये हमें बताती है कि रेडियो में, मतलब मीन्स जब भी कोई चीज या कोई घटना होती है, तो उसके अगले दिन या कुछ घंटों बाद, क्योंकि जब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कट ऑफ हो चुका है, तो ना टीवी है, ना ही कोई मतलब न्यूज चैनल से कुछ वर्क कर रहे होंगे जिससे उनको कोई न्यूज मिल पाए, या न्यूज़पेपर सेल अप हो रहे होंगे तो उनको न्यूज मिल पाए। तो अगले दिन रेडियो में न्यूज आती है कि जो सुनामी वेव्स थी वो इंडियन ओशियन में आई थी जब, तो उन्होंने 32 लोआ के मेजर पार्ट्स को अफेक्ट किया है, एंड इट वाज वेरी डिवास्टेटिंग एज 40,000 पीपल वर गॉट डेड। तो 40,000 पीपल जो थे वो उस वेव से मारे गए थे, और जो सुनामी वेव्स थी वो कितनी थी? 18 फीट हाई। कितनी फीट हाई वेव्स थी? 18 फीट हाई वेव्स थी, और जिसमें 40,000 लोग मारे गए थे। और ये वेव्स कहाँ पे आई थी? इंडियन ओशियन में, एंड इट हैड सीवियरली अफेक्टेड। इस वेव्स ने बहुत बुरी तरह से श्रीलंकन कोस्ट को अफेक्ट किया था, एंड द इंसिडेंट was taken place on 26 December 2004. So students, जो ये सुनामी आई थी, ये 40 इयर्स में बाद, मतलब इतना डिवास्टेटिंग और इतना भयानक मतलब इफेक्ट जो था वो दिखाया था उस एरिया में। So students, this was the today's explanation of the chapter the tsunami struck today. The day tsunami struck. Sorry, the day tsunami struck. I hope you must have understood about the chapter. Read the chapter, and if you have any problem, you can interact with me through Google Meet for clearing your doubts. And thank you for watching this video. Keep liking and sharing this video, and also wash your hands before and after meal and after coming from outside, and wear a mask when you are going to the public places, because it is very necessary to prevent from COVID-19. Thank you.